Hello students, good morning. And today I would like to start a new chapter from class 11, and that is cell structure and functions. So let us proceed with the new chapter, the new unit of class 11. All the aspects related to cell that is being included, that are being studied in cytology. And at this level, for your age group, the mental capacity you have acquired on this level, the syllabus is being framed, and under the cytology, under the chapter cell and its functioning, cell structure and functions, there are 3 chapters. First one is the structural part. What are the structure, morphological part? And second one is the chemical part, means what are there, because overall in a cell there are metabolism. सेल के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का वो क्या है, सेल के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग इनसाइड द सेल. केमिकल रिएक्शंस, दैट मींस केमिकल्स आर देयर इनसाइड द सेल. Chemicals means in the form of atoms, in the form of ions, in the form of molecules, and all these molecules are found inside living being. Therefore, it is termed as biomolecules. So the first one, the first chapter is related to the structure, means all the cell organelles, everything regarding cell, structural part. Second one is biomolecules, the molecules inside the cell, and by dint of which the chemical reactions are going on, metabolism is going on. And again, as per the cell theory, the cells are arising from pre-existing cells. That means there will be cell reproduction, there will be cell division, and all these things are very fundamental, very basic, and you must know all these things very clearly, especially the cell division. You have to know the cell division. As in next class, for class 12, there is reproduction, and in reproduction there is cell division. Reproduction means cell division. Reproduction means formation of gamete, and gamete will be formed by dint of reductional division, meiosis. Overall general growth, after formation of zygote, there will be mitosis, equational division. Prior to formation of zygote, there will be formation of gamete, gametogenesis, and gametogenesis is due to meiosis. So understanding the fact regarding mitosis and meiosis, that is the basic need of the student who are opting biology. After that, you will study genetics, and for genetics, the DNA, the RNA, and during cell division, there is replication of DNA, synthesis of DNA. Equational division means the parent cell having the number of chromosomes, exactly same number is there in their daughter cells. That means at any stage of the cell division, the amount of the DNA has been doubled. तभी तो पहले 46 था, आगे भी क्या हो गया 46 रहा. इसका मतलब क्या हो, कहीं न कहीं डीएनए की सिंथेसिस हुई है. घरों में बंटवारा होता है, क्या होता है, जो वाइस पेरेंट हैं क्या करते हैं, वो इस तरह से परचेजिंग करते हैं, इस तरह से घर बनाते हैं कि 2 बच्चे हैं तो दोनों को बराबर बराबर मिल जाए, बंटवारा हो जाए. और यदि नहीं है तो कई बार एट दैट टाइम उसको मैनेज किया जाता है. ठीक है, तो सेल डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, तो दोनों सेल में सारी चीज़ें चाहिए. माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, राइबोसोम्स चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, गोल्गी चाहिए. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या होगी, सिंथेसाइज होगी, ये सारी चीज़ें बनेगी. उसके बाद ही डिवाइड करेगा तो एक सेल और सेल की जो शेप और साइज है वो भी मेंटेन रहेगी, और इसका फंक्शनिंग भी मेंटेन होगा. अब मान के चलो घर का बंटवारा हो और इसी घर में केवल एक कुकर दे दिया जाए, दूसरे घर में एक चूल्हा दे दिया जाए, न तो इसका खाना बनेगा ना इसका खाना बनेगा. तो क्या होना चाहिए कि इस तरह से सेल के अंदर सिंथेसिस हो किसका, मटेरियल्स का, ऑर्गेनेल्स का. आफ्टर सेल डिवीजन बोथ द सेल विल रिमेन फंक्शनल. दोनों सेल क्या होंगे, फंक्शनल होंगे. जो फर्स्ट यूनिट है हमारा
that is related to diversity. तो फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, related to diversity, and this diversity is on account of the shape. There are different shapes of organism on account of the size. The smallest known living cell, that is mycoplasma, PPLA. The largest cell is largest cell किसको कहेंगे? हमारा क्वेश्चन क्या था? Largest. The ostrich egg. The neuron is the longest. नहीं, बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो नहीं, हर एक जगह न्यूरॉन क्या कर रहा है? इसका नेटवर्क है, न्यूरॉन का नेटवर्क है। तो जाहिर सी बात है, नेटवर्क बना रहा है, इसका मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, लंबे स्ट्रक्चर होंगे। तो क्या होंगे? जो सेल है उसकी शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है, एज पर देयर फंक्शनिंग, इसके फंक्शनिंग के आधार पे। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी है, दैट मींस दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, देयर फंक्शनिंग्स आर डिफरेंट, देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दे आर डिफरेंट, अलग अलग तरह से डाइजेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज को फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन लिविंग बीइंग में जो डाइवर्सिटी है, दैट इज द आउटकम ऑफ, ये डाइवर्सिटी आउटकम किसका है? डाइवर्सिटी इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कारण क्या हुआ है? डाइवर्सिटी भी है। तो हम लोग ये मान के चलें कि प्रीवियसली या फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं लाइफ ऑरिजिनेट किया होगा, सिंगल सेल बने होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट। पहले कोजरवेट्स सिंपल सेल बने, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन भी होता गया और सेल डिफरेंशिएशन होता गया, अलग अलग तरह के सेल बनते गए। और इसी तरह से आते आते आज क्या हो गया? ये बायोडाइवर्सिटी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे की ओर जाएं, जैसे हम लोग अपने पूर्वज की बात करें, दादा के दादा बहुत पीछे जाएं, तो हो सकता है पता चले कि वो सब आपस में एक ही थे, नहीं करीबी थे। अब एक ही गाँव मान के चलो कोई एक पेयर है, आ गया तो उसके 2-4 बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, और आज क्या हो गया है? जब शादी ब्याह या भोज होता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें से कुछ अलग खाता है, कुछ अलग खाता, ग्रुप बना दिया है। कई बार कहता है ये उधर का आदमी है, उस मोहल्ले का है, उस टोले का है, ये इधर का है। जबकि बहुत पीछे जाए तो क्या होगा? जो एंसेस्टर थे दैट वाज सिंगल पर्सन, सिंगल पेयर। उसी तरह से यदि लिविंग की बात करें तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सारे के सारे एक जैसे, क्योंकि सबका जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ कहाँ से? कॉमन पॉइंट से हुआ। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपस में इंटीग्रिटी दिखाते हैं, आपस में सिमिलैरिटी दिखाते हैं। और ये सिमिलैरिटी जैसे हम लोग कहते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट मीन्स देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स व्हिच इज कॉमन टू ऑल लिविंग बीइंग। वो सारे के सारे लिविंग बीइंग में क्या है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। और वो क्या है? सब जितने भी लिविंग बीइंग है, जो सबसे मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगी? कॉमननेस, है ना? कॉमननेस क्या होगा लिविंग बीइंग में? अल्टीमेटली ऑल द लिविंग बीइंग दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेलुलर स्ट्रक्चर है। जितने भी लिविंग बीइंग है वो क्या बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज देयर। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक, यदि कहता है ना कि एक सेल का स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ सेल, नहीं, सेलुलर लेवल पे क्या होंगे? सेल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फंडामेंटली बेसिकली सेल होगी तो क्या होगा? एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होगी। कोई सेल होगी तो जाहिर सी बात है सेल बना हुआ किसका होगा? जो सेल बने होंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या इंक्लूड होगा? सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, हर एक सेल में होगा सेल मेम्ब्रेन। यानी कि कहीं ना कहीं सारे के सारे सेल्स में क्या है? सिमिलैरिटी है। लिविंग बीइंग में क्या है? सिमिलैरिटी। उसके बाद क्या होगी? साइटोप्लाज्म होंगे, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस होंगे, वेदर इट इज डिफ्यूज्ड, दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस इज देयर, दैट मींस जेनेटिक मटेरियल इज देयर। तो ये क्या हो गया? ये कॉमननेस है, सभी में है।
बेसिकली जो सेल हम लोग देखेंगे क्या होगा, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स या फिर प्लांट सेल हैं, एनिमल सेल, इनमें क्या है डिफरेंसेस आर देयर। फंडामेंटली ये प्रश्न उठता है कि इनमें जो वेरिएशन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वेरिएशन इन द इंडिविजुअल। तो बेसिकली क्या है, सभी के सभी एक जैसे हैं, सारे के सारे सेल के बने हुए हैं। अब सेल के बने हुए हैं तो अलग अलग कैसे दिखते हैं, समटाइम्स द सिंगल सेल behaves like an individual, behaves like an organism, and they are termed as, सिंगल सेल से बना हुआ उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर, ऑर्गेनिज्म made up of single cell, that means all the life processes like respiration, nutrition, excretion, circulation, reproduction, all are being performed by a single cell, that is unicellular. And on the opposite side, on the another hand, the organisms they are made up of a number of cells, that means multicellular organism. So the organization may be unicellular or multicellular, or on the basis of their advancement, on the basis of their structure, whether they are primitive cell or they are advanced cell. सेल को हम लोग यदि देखें इसके मेटाबॉलिज्म के आधार पर, सेल को यदि हम लोग देखें, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है that will be decided by the chemical reactions going inside the cell, वो सेल को क्या करेगी, डिफरेंशिएट करेगी। कोई भी सब्जेक्ट जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं तो दे आर इंटीग्रेटेड, सब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, और हम लोग क्या करते हैं, वी आर टेकिंग बेनिफिट और वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अनदर सब्जेक्ट। कोई ऐसा लिमिटिंग बाउंड्री नहीं है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है। तो यहाँ भी क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए हमको चाहिए क्या, केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए। आयंस है, चार्जेस है, केमिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शन है, बॉन्ड की फॉर्मेशन है, बॉन्ड का ब्रेकिंग है, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो ये सारा क्या है, केमिकल रिएक्शन आते हैं। और सेल की स्टडी की बात करें, एकदम स्टार्ट से बात करें, जो सेल थ्योरी की बात करें, तो ये सेल थ्योरी की कहानी कब की है, सेल थ्योरी इज द स्टोरी ऑफ द ईयर, सेल थ्योरी कब की कहानी है, सेल थ्योरी इज द स्टोरी ऑफ 1838। देयर आर टू पर्सनैलिटीज, सेल थ्योरी किन्होंने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन का वर्क हुआ था कब, 1838 में, और स्वान का वर्क कब हुआ था, 1839 में। इस समय इन्होंने सेल के बारे में चर्चा किया, सेल की स्टडी की, और सेल की स्टडी की होगी, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में माइक्रोस्कोप पढ़ना होगा तुम लोगों को, और वहाँ क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड दैट कम्स अंडर फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर में आ रहा है। फिर लेटर ऑन ये दोनों मिल करके क्या क्या नाम है, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट हैं। स्लाइडेन वर्क किए किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, और कंक्लूड किए कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी प्लांट हैं वो सेल के बने हुए हैं। दूसरे शब्दों में उनका कहना था कि द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्लांट इज सेल, और वही बात एनिमल के केस में कहा गया किसके द्वारा, स्वान के द्वारा। स्लाइडेन है स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है, हंस, और हंस क्या है, एनिमल है, और संस्कृत में स्वान किसको बोलते हैं, स्वान बोलते हैं कुत्ते को। स्वान निद्रा तथैव च, मतलब नींद किसके जैसा, कुत्ते के जैसा। याद रखने के लिए कहते हैं कि स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट है, तो कई बार होता है ना कि कौन प्लांट सेल दिया, कौन एनिमल सेल दिया, तो स्वान एनिमल सेल, स्लाइडेन प्लांट सेल, ठीक है। तो दोनों ने मिल करके ये बात बता दिया
सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इतनी सी बात हो गई। लेकिन ये सेल आते कहाँ से हैं? फ्रॉम वेयर द सेल्स आर अराइजिंग, फ्रॉम वेयर द सेल्स आर कमिंग, they were not in a position to explain this, and later on another scientist in the year 1855, further in the year 1855, it is Rudolf Virchow. He explained, he added in the cell theory that the cells are arising from the existing cell. तो सेल की स्टडी हम लोग करेंगे इसके केमिकल्स के आधार पे, केमिकल रिएक्शंस के आधार पे, और उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। दैट मीन्स इनसाइड सेल देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स, जिसके हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, लिविंग का साइन है, तो आखिर इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये सारी बातें डिसाइड करेगी सेल के नेचर को, सेल के फंक्शनिंग को। ठीक है, और सेल को हम लोग जब देखते हैं तो इसमें कई चीज़ें हैं जो बेसिक है। जैसे पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगी, न्यूक्लियस होगी, उसके बाद क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, और कुछ चीज़ें क्या होगी किसी पर्टिकुलर सेल में होगा, किसी सेल में नहीं होंगे। अब जैसे प्लांट और एनिमल सेल की बात करें ब्रॉडली, क्या होंगे, प्लांट सेल हैविंग सेल वॉल, एनिमल सेल डिवाइड ऑफ सेल वॉल। एनिमल सेल में पाए जाते हैं सेंट्रियोल, एनिमल सेल में क्या पाए जाते हैं सेंट्रियोल, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स, और लार्ज साइज वैक्यूल्स होगा, दैट मींस द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेल इज ऑक्युपाइड बाय द वैक्यूल्स। तो जाहिर सी बात है वहाँ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर प्लांट सेल में क्या हुआ है, इस तरह से मान लेते हैं कि वैक्यूल्स हो, लार्ज साइज वैक्यूल्स हो, तो जाहिर सी बात है और जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होगी, इसके बाहर ही होगा। क्या होंगे, इसके बाहर होंगे। तो एनिमल सेल की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, द न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड। न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रली प्लेस्ड। एनिमल सेल के केस में न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में। लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या होगा, न्यूक्लियस कहीं भी होगी तो इसको छोड़ कर भी होगा नहीं, ये क्या होंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होगा, शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरी। प्लांट सेल न्यूक्लियस कैसे होंगे, पेरिफेरल होगा। तो जितने भी साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर्स हैं फंक्शनल, जैसे हम लोग का ऑर्गन है, हाथ है, पैर है, आँख नाक कान है, उस तरह से सेल के अंदर में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। और ये सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टास्क फॉर सेल, फॉर रिमेनिंग देम एक्टिव, फॉर रिमेनिंग देम अलाइव। देयर इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बना हुआ है कौन सा सेल ऑर्गेनेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और कई ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। नहीं, एक स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स पे क्या काम होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस प्रोकैरियोट में भी होंगे, यूकैरियोट में भी होगा। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम्स है दैट इज ऑफ 70 एस्टाइल। प्रोकैरियोट में कैसा होगा, प्रोकैरियोट में 70 एस्टाइल ऑफ राइबोसोम्स आते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट में कैसा होगा, 80s, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोकैरियोट में क्या होंगे 70s ऑफ राइबोसोम्स, यूकैरियोट में क्या होगा 80s ऑफ राइबोसोम्स। S represents this S in the honor of the scientist, साइंटिस्ट के ऑनर में इन्होंने इसको डिस्कवर किया हो, मैंने इसके बारे में बताया होगा। एंड इट इज स्वेडबर्ग, इट इज स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट। S represents स्वेडबर्ग्स यूनिट ऑफ कांस्टेंट, और it may be termed as sedimentation coefficient. S means for Swedberg's constant or Swedberg's unit, constant of unit in the honor of the scientist. So it is clear that
ATS is found in eukaryotic cell, but some of the cell organelles are there in the eukaryotes where 70S type of ribosomes are there. कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जहाँ 70S टाइप की राइबोसोम्स है? माइटोकॉन्ड्रिया. You have studied in class 9 that there are two cell organelles which are semi-autonomous organelle, and they are synthesizing some of their own proteins. That means they are having their own DNA, their own genetic material, and for expression of the genetic material, that means for synthesis of protein, ribosomes will be there. So in that case, that means the semi-autonomous organelle in case of eukaryotes, chloroplasts and mitochondria, and they both are having 70s. It is clear that in eukaryotes there are 80S type of ribosomes, but other than 80S type of ribosomes in the cytoplasm, the chloroplast and mitochondria, they will also contain 70S type of ribosomes. That means in prokaryote only 70S type of ribosomes, but in case of eukaryotes both 70 and 80S type of ribosomes are found. Clear? In case of semi-autonomous organelle, they are working under the control of nucleus of the cell, but some of their functioning is being regulated by their own DNA, and for the expression of DNA there is need of ribosomes, and they are of 70S type of ribosomes. Is it clear? यहाँ भी वही सारी बातें हैं जो आप क्लास 9 में पढ़े हैं, उसी का थोड़ा इलेबोरेशन है, नथिंग मोर. पढ़ करके ये बात सरल हो जाए, समझ में है ना. जितनी बार पढ़िएगा उतनी आसानी होगी, सुविधा होगी, पढ़ाई करनी है आपको. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में. थैंक यू ऑल.